Welcome to Artwork Drawing and Design Academy. Uh, First of all, sorry I couldn't upload for this season. I have not been uploading the video. There are a few reasons why I'm not able to upload. But today I just I couldn't stop myself from making a video because whatever is my observation since past 1 year or maybe past so many years since I'm teaching. I just wanted to say out few things very straight because there is no point in not mentioning what is not beneficial for your. It is very important that you all get to know the truth. So I wanted to make a video which will mention few things before time when you all have time in your hand. So maybe this video will not make a sense if you all are right now appearing exams, or maybe it will help you also because I don't know how many are prepared fully and how many are confident enough and lucky enough rather to get admissions in JJ School of Art. Because when I see Sir JJ School of Art, I will just take a big name. It's Maharashtra AAC CET. These exams are specifically conducted in Maharashtra, and these are entrance exams for BFA, that is Bachelors of Fine Art or applied art, for instance. Okay, so what are those things which people need to know about? So, and especially if you are appearing this exams from other states, like you are not from Maharashtra and you are an outsider and you are applying these for these exams, you need to very specifically know few things which I want to mention here. Okay, so what are those three things? I've just put it down in 3 points to make it very easy and very concise. Okay, so first thing, when you are in a competition, that might be anything. I'm not it's not very relevant to only this entrance exam, like JJ School of Art, but it could be relevant to other exams. But when I am mentioning here, I am very clear that I am mentioning only for the Maharashtra art colleges, that is JJ School of Art specifically. Entering there is a very difficult. I need not mention how difficult it is, but and there are few reasons behind that. But how will you enter? The one clear thing which you have to understand is that you really have to be good. You cannot be a average student. Okay, क्या करते हैं मैं बच्चों को देख रही हूँ अभी, और मेरे पास जो एकेडमी पे बच्चे हैं, आई ऑलवेज मैंशन दैट मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूंगी और मराठी वीडियोस हम अलग से बनाते हैं. ओके, लेकिन यहाँ पे जनरली वो क्राउड है जो महाराष्ट्र से बाहर के क्राउड के लिए ये वीडियो बना है. तो आई कैन स्विच टू हिंदी मराठी एज पर हिंदी एंड इंग्लिश एज पर जो मेरे कंफर्ट में होता है. मैं बातें करते करते स्विच ऑफ करती हूँ, तो जस्ट बेयर विद मी फॉर दैट. बट ये जानना ज़रूरी है कि आपको एवरेज स्टूडेंट होके नहीं चलेगा, आपको अबव एवरेज होना है. और स्पेशली अबव एवरेज नहीं, आपको एक्सेलेंट कैटेगरी में होना चाहिए. और स्पेशली जब भी आप ओपन कैटेगरी में आते हो, अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो देर आर नो चांस कि आप एवरेज काम कर रहे हो, आप सो काम कर रहे हो. आप सीखने वाले मोड में हो और आप एक गो में एंट्रेंस क्लियर करोगे. अभी जो बाहर से बच्चे अप्लाई करते हैं, जो महाराष्ट्र से बाहर से बच्चे अप्लाई करते हैं, उनके लिए ये कुछ हद तक बहुत आसान होता है. बिकॉज जो स्टूडेंट्स का महाराष्ट्र से अपेयर करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी लिस्ट अलग लगती है और उनमें बहुत सा दे आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अपियरिंग फ्रॉम महाराष्ट्र. लेकिन जो आउटसाइडर है वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा यानी काफ़ी अमाउंट में है. लेकिन कंपेयर करेंगे अगर महाराष्ट्र से अप्लाई करने वाले बच्चों से, तो वो बच्चे कम हैं जो महाराष्ट्र से बाहर अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे आर्ट कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं.
ओके तो ये पहला मुद्दा है कि एक्सीलेंट होना चाहिए आप, एटलीस्ट अबाव एवरेज। में एक्सीलेंट बोलूँगी तो शायद एग्जैजरेशन लगेगा, लेकिन इसमें कोई गलत भी नहीं है, बिकॉज इसके कुछ रीजंस है और वो मैं डिस्कस करूँगी। एक पहली बात तो ये है कि जेजी की जो एंट्रेंस होती है ना, वो बहुत ही क्लियर होती है। क्लियर होती है का मतलब क्या है, वहाँ पे ना उस एग्ज़ाम पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पे आपको सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए नहीं जज किया जा रहा है। हालांकि जब हम देखते हैं कि हम एनआईडी के बच्चों को ट्रेन करते हैं और डिज़ाइनिंग के बच्चों को ट्रेन करते हैं, बहुत सारे एमआईटी में हमारे बच्चे हैं, एनआईडी में है, एनआईएफटी में है, तो वो अलग क्राउड है, ये अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे जब भी हम जेजे के बारे में बात कर रहे हैं या स्पेसिफिकली आर्ट कॉलेजेस के एंट्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये एंट्रेंस सिर्फ क्रिएटिविटी को देख रहा है ऐसी बात नहीं है। ये एंट्रेंस क्रिएटिविटी एंड योर स्किल, इक्वल अमाउंट ऑफ स्किल दे आर जजिंग there. That's why subjects are arranged in a way. अगर आप मेरे बाकी के वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पे मैंने ये बात की है कि किस तरह से एंट्रेंस का पैटर्न है। एंट्रेंस का पैटर्न जो है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो है, जैसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग है और मेमोरी ड्राइंग है, ये आपके स्पेसिफिकली स्किल को या मेमोरी रिटेंशन को देख रहा है। और क्रिएटिविटी जो है ना, ये हालांकि सारे सब्जेक्ट्स में जज होगी थोड़े बहुत टप्पे पर, लेकिन आपका जो 2D डिज़ाइन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है कि हाउ क्रिएटिव यू ऑल आर। बट इट इज़ नॉट ओनली क्रिएटिविटी, लेट मी टेल यू ऑल, क्रिएटिविटी को आगे रखना है तो आपका ड्राइंग स्ट्रांग होना चाहिए। हालांकि मैं आजकल देखती हूँ कि हर जगह पे ये बहुत ज़्यादा ऐसे कहने में आ रहा है और सब जगह पे ऐसे ही कहा जा रहा है कि ड्राइंग तो क्या आता है, ड्राइंग ज़रूरी नहीं है, क्रिएटिविटी ज़रूरी है, ड्राइंग ज़रूरी नहीं है, क्रिएटिविटी ज़रूरी है। तो ये थोड़ी सी वही बात हो गई कि आप तबला बजाने जा रहे हो और आप अपना तबला घर पे रख के गए, तो ये ऐसे ही है। आप विजुअल फील्ड में जा रहे हो, आप कोई भी विजुअल फील्ड में जाते हो तो आपको ड्राइंग आना ज़रूरी है। अच्छा नहीं आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ड्राइंग का स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। आपका निकालना और आपका अंडरस्टैंडिंग, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपका ड्राइंग का अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है, उसी का मतलब ये है कि आपका विजुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है, आपका विजुअल अभी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे नहीं है कि आप आगे चल के ड्राइंग ही करोगे, लेकिन आपका विजुअल अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर है तो वो आपको इस फील्ड में सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्राइंग ये सबसे ईजी और सबसे परखा और जांचा परखा तरीका है कि आपका विजुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए ड्राइंग बहुत ही आपको हेल्प करता है और इसीलिए ड्राइंग करना होता है। और अगर आप कुछ ऐसी फील्ड्स में जाते हो कि एनिमेशन है या फाइन आर्ट है, फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेशन है, तो आपको ड्राइंग के बगैर देर आर वेरी लेस चांसेस। अगर कोई बोल रहा है कि ड्राइंग नहीं आता है तो भी चलता है, तो ये एक तरीके से आपको रिस्ट्रिक्ट करना हुआ। और आप अगर आपकी शुरुआत ही रिस्ट्रिक्शंस से कर रहे हो तो ये बात नहीं बनती है, ठीक है। तो पहला मुद्दा जो है ना, कि मैं देखती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि जेजी के एंट्रेंस को क्रॉस करना, मैंने कहा एक पहले बात कि आपको ना एक्सेलेंट या अबव एवरेज तो होना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आप कैसे हो? डेफिनेटली ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये एक बात आप समझिए कि ये एंट्रेंस पैटर्न जो है ना, स्किल ओरिएंटेड है। स्किल आपको किसी से सीखनी ही पड़ती है। मतलब आप आजकल ऐसे बहुत है कि आप यूट्यूब से करो और यूट्यूब से आप सीख जाओगे, तो ऐसे नहीं होता है। आपको स्किल ओरिएंटेशन, स्किल सीखने के लिए आपको दो तरीके हैं। एक तो आप अपने आप सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, और फिर होता क्या है, आप अपनी एक स्किल डिराइव करते हो और आप कुछ हद तक स्किल सीख भी जाते हो, रादर अच्छी भी सीख सकते हो आपकी मेहनत के ऊपर। लेकिन आपको जो टाइम लगता है ना, वो बहुत ज़्यादा है। आप 10th क्रॉस करने के बाद 2 साल में सडनली जब भी आप रिसर्च करने लगते हो और ड्राइंग करने लगते हो, तो यूट्यूब के वीडियोस को देख के आप ड्राइंग नहीं सीख सकते, ये फैक्ट है। क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ देख रहे हो, आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे आधा है। आपने जो ड्राइंग किया है उसके ऊपर आपको कोई भी रिव्यू नहीं मिल रहा है या करेक्शंस नहीं मिल रहा है।
और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपका लेवल कहाँ पे है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, जो शायद मैं मेरे सेकंड चैनल हम मैं आप सेकंड चैनल हम स्टार्ट करें तो उसके बारे में बाद में मेंशन करूँगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई रिव्यू देने वाला हो और आपको ड्राइंग का जो टेक्निक्स है और जो बेसिक लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो आपको प्रैक्टिस लगती है और जो मेंटल काउंसलिंग लगता है, काउंसलिंग आपको बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली आज के एज में, क्योंकि आज आपका जो जनरेशन है जो एंट्रेंस के लिए बैठ रहा है उनका मेजर प्रॉब्लम है मीडिया और सोशल मीडिया। और फिर समहाउ ऐसे नोटेशन है कि सोशल मीडिया से आप सब कुछ कर लोगे, इसमें आपका भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे बहुत देखा है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते। अगर कोई बच्चा साइंस के लिए जा रहा है तो उसको महंगे से महंगा क्लास लगाएंगे और पता नहीं आप जितने भी पैसे पूछो वो आपको देंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा आर्ट करने जा रहा है तो पहले तो उसे परमिशन नहीं मिलती है और फिर बेचारा बच्चा किसी तरह से अगर कन्विंस कर ही लेता है या तो बगावत पे उतर के चीज़ें करता है तो फिर उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, maybe he is not getting that support, maybe he is not able to ask for a money from parents, or maybe he is not able to get that kind of a financial support from the parents। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो आप उसी फील्ड को रिस्पेक्ट नहीं देते। जो टीचर्स है या जो जिन्होंने इतने सालों से प्रैक्टिस किया है, जो स्किल्ड लोग हैं, उनको अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि दे गिव एवरीथिंग, हाउ विल दे सस्टेन। आपको ये बात सोचनी बहुत ज़रूरी है कि फिर उनका सस्टेनेंस कहाँ से आएगा। आप अगर आप किसी शॉप में जाते हो, आप एक नमक का पैकेट भी पूछो और बोलो कि मैं पैसे लेके आऊँगा तो वो नहीं देते कभी कभी, बिकॉज दे आर बनिया, दे विल नॉट गिव। उनको पता है पता नहीं लेके आए, वो बोलते लेके आओ फिर ले लो, जब तक वो आपको जानते नहीं है। मतलब इतने हद तक हम आज मटेरियल वर्ल्ड में है और फिर हम एक जगह पे हम इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें चीज़ें फ्री में मिलनी चाहिए, तो वो थोड़े हद तक ना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आर्टिस्ट जिसने इतने सालों से मेहनत की है, अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, मैं पेंटर हूँ और मैं इतने दिनों से हम बच्चों को ट्रेन करें और हम बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं। बिकॉज ये सब बातें मैं अलग वीडियो में बताऊंगी कि क्या होता है जब ये आप आर्ट करते हो, और स्पेशली हमारे इंडियन सोसाइटी में आर्ट को किस तरह से देखा जाता है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि और अगर देने की भी सोचे तो हम यूट्यूब से चीज़ें नहीं दे सकते, बिकॉज आपको वो इंसान जो सीख रहा है, जो बच्चा सीख रहा है, उसके साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है और तभी आप उसे दे पाते हो। और अगर आप ये सोचते हो कि आप वीडियो से सीखोगे तो ये नहीं होगा, आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है और आपको सही टाइम पे आना है। क्योंकि मेरे पास जब ये बच्चे आते हैं यूट्यूब से देख के, वो कभी आते हैं जब ये एंट्रेंस के लिए 3-4 महीने बचे हैं, तभी वो हमारे पास आते हैं। तो तभी हम क्या करते होता है, हम बच्चे को देखते हैं, अगर ऐसे लगता है कि इससे हो जाएगा, वो कर रहा था बहुत सारी प्रैक्टिस तो हो जाएगा, तो हम उसे लेते भी है। नहीं तो क्रैश कोर्स के लिए वी आर एटलीस्ट इन आर्ट वर्क एकेडमी इट इज़ नॉट हैपनिंग दैट वी आ जाओ एंड पे अस एंड दैट्स इट। We do not end up there. We are very conscious that if we are taking money from y'all, we should be able to pay y'all back. दैट डजेंट मीन कि मैं एडमिशन का गारंटी आपको दे रही हूँ, बिकॉज मैं प्रैक्टिस का गारंटी देती हूँ या टीचिंग का गारंटी देती हूँ। मैं एडमिशन का जो सीन होता है ना वो टोटल अलग होता है और उस चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। अभी ये सब जो बातें हैं ना शायद लंबी खींचती है क्योंकि मैं बहुत स्पॉन्टेनियसली बातें करती हूँ, लेकिन और ऐसे गिन चुन के कट ऑफ करके बातें करना मैं प्रेफर नहीं करती, इसलिए शायद मैं वीडियो भी नहीं बना पाती। बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कट डाउन थिंग्स, because whatever it is it has to come in a very true essence to y'all। तो वही कारण है कि sometimes video might get long, okay, but just bear on with me because आपको जो मैं बता रही हूँ वो शायद कोई नहीं बताएगा। It's a reality of this field, okay, that अगर आपको skill लेनी है
तो आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, और वो टीचर आपकी जर्नी को शायद कट डाउन करता है, छोटी करता है, बिकॉज वो आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताता है जो उसके एक्सपीरियंस से उसने सीखी है, और वो आपको इजीली वो देता है, जो यूट्यूब पे शायद आपको नहीं मिलती हो, और आप लगे रहते हो यूट्यूब के पीछे। तो ये थोड़ा सा आपको जानना है कि आपको सही टाइम पे हमारे पास आना है, रादर हमारे पास नहीं, आप जो जिसे सही समझते हो उसके पास जाना है। लेकिन आपको एटलीस्ट 10th में होते हुए, जब भी आप 10वीं में हो, आपको 11th में आते ही आपको तुरंत शुरुआत करनी है। अभी आइडियली शुरुआत करनी होती 8th ग्रेड से। जो हमारे पास एकेडमी पे बच्चे हैं वो 8th स्टैंडर्ड से हमारे पास सीखते हैं, ज़्यादातर बच्चे हमारे 8th स्टैंडर्ड से सीखते हैं। हमारा यूट्यूब का क्राउड अभी अभी पेंडेमिक की वजह से है, नहीं तो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग हम 8th स्टैंडर्ड से देते हैं, और फाउंडेशन वहाँ पे ही कराते हैं। फाउंडेशन किस तरह से कराते हैं और क्या कराते हैं, ये सारा मैं अलग वीडियो में बात करूँगी। लेकिन अभी ये चीज़ को समझो कि अगर आप अभी एंट्रेंस दे रहे हो, नहीं क्लियर करते हो, तो आपको तुरंत किसी टीचर के पास जाना है। बिकॉज मैं हमारे जो बच्चों का रिव्यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं सीधी बात कर रही हूँ, मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूँगी कि आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली स्किल ओरिएंटेड कोई भी चीज़ को अचीव उस टाइम स्पैन में अचीव नहीं कर सकते, जब भी आपके पास शायद एक ही साल है, या आपने किया ही नहीं है ड्राइंग, आप सडनली 11th स्टैंडर्ड में आके करने जा रहे हो, तो आप अपने आप से सीखने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपकी जर्नी शायद आपको वो चीज़ें कुछ उस लेवल पे मिलती भी नहीं है जिस लेवल पे आपको ग्रास्प करनी चाहिए थी। ओके, तो ये एक बात हो गई कि आपको सही टाइम पे टीचर के पास आना है, नहीं तो टीचर भी कुछ नहीं कर पाता। जो जो बंदा स्किल दे रहा है, जो स्किल जिसके पास स्किल है, उससे स्किल लेने के लिए आपको एक टाइम लगेगा। सिर्फ पैसे दे के या क्रैश कोर्स करके स्किल नहीं ले सकते। उसमें से हम नॉलेज नहीं बोलूँगी, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बुकलेट्स ले सकते हैं, क्या सिलेबस है वो ले सकते हैं, कैसे अप्रोच करना है, ये सारी बातें हम शायद वहाँ पे क्रैश कोर्स में समझ सकते हैं। लेकिन आपको अगर स्किल सही तरीके से लेनी है तो नहीं मिलेगी, और स्किल लेने को टाइम लगेगा। आप अगर कोई नीश कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हो जहाँ पे बहुत बीएफए के बाकी के कॉलेजेस का भी यही हाल है, लेकिन महाराष्ट्र में तो आप विदाउट स्किल ओरिएंटेशन और क्रिएटिविटी भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। डू नॉट टेक कोट मी एंड डू नॉट टेक मी रॉन्ग, creativity and skill equally are important, rather these both are somehow uh, uh, two different sides of the same coin. Okay, so you might flip on this and that side, but that doesn't mean कि आपका जो सिक्का है वो बदल जाता है। वो सिक्का, उसके दो बाजू है, वो दोनों को ही आपको संभाले रखना है। ठीक है, तो दूसरा बात जो मुझे मेंशन करना था कि अगर आप आउटसाइडर हो तो आपको एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है ना वो देना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टेट्स के जो ड्राइंग एग्ज़ाम्स है जो शायद अलग नाम से है, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट नहीं है, वो भी कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम आपने दिया है तो आपको स्ट्रेट अवे ए ग्रेड की वजह से 10 मार्क्स मिल जाता है। ये सिर्फ मैं जेजे के बारे में बात कर रही हूँ, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बात कर रही हूँ, नॉट फॉर अदर बीएफ कॉलेजेस फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र की, दिस इज स्पेसिफिकली महाराष्ट्र। तो आपको ना 10 मार्क्स लगे लगाए मिल जाते हैं और आपका सडनली रैंक चेंज हो जाता है। हमने ये एक्सपीरियंस किया हमारे क्लासेस में, और हमारे हमारे बच्चों के साथ। ये जो आउटसाइडर हमारी ये साल लकीली हमारे पास इनफ एंड मोर बच्चे थे, हमने 2 बैचेस में ट्रेन किया। हम सिर्फ 12 बच्चे लेते हैं एक बैच में, तो हमने 2 बैचेस में बच्चों को ट्रेन किया था। तो जो बाहर के बच्चे थे हमारे पास, उनमें से सब बच्चों को मिला। उनके रिव्यूज़ मैं डालूंगी यहाँ पे, यूट्यूब पे डालूंगी आपको देखने के लिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसे था, और वो आप जान पाएंगे। ओके, लेकिन जो बात बताने वाली है वो ये है कि अगर हमारा जो एक स्टूडेंट था उसको वो रैंक में एक्चुअली सेकंड है, लेकिन उससे जस्ट बिकॉज उसने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट नहीं दिया था वो उसका रैंक डायरेक्टली 12 पे गया, क्योंकि उसके वो जो 10 मार्क्स जो उसके हाथ में बने बनाए मिलने वाले थे वो 12th आ गया इंस्टेड ऑफ सेकंड। और फिर उसका जो कंपटीशन है ना वो बढ़ गया।
तो आपको ये समझना है कि आप एलिमेंट्री इंटरमीडिएट देना ही है। अभी एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए भी हम ट्रेन करते हैं। आप अगर चाहते हो तो हमारे पास ट्रेन हो सकते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और वी विल ट्रेन यू फॉर एलिमेंट्री इंटरमीडिएट also, but this is only possible when you all are coming to us, when you all are at least entering your 10th 11th grade. कुछ बच्चे क्या करते हैं 10th के बाद रुकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, वेकेशन एंजॉय करते हैं और फिर आने की सोचते हैं। तो मत, आप अपना टाइम मत गवाइए, क्योंकि होता क्या है 11th स्टैंडर्ड में ही आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है। 12th आने के बाद ना पेरेंट्स आपको वापस परेशान करते हैं, आपको सिस्टम परेशान करता है, आपके कॉलेज के सिलेबस, टीचर्स, आपको शायद टाइम नहीं मिलेगा, आप बहुत बिजी हो जाते हो 12th स्टैंडर्ड में और फिर आपको टाइम नहीं मिलता। तो आपके पास हार्डली क्या होता है 1 साल होता है जहाँ पे आप ट्रेन करोगे। और अभी पेंडेमिक में तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का जो एग्ज़ाम इतना दूर तक खींचा है कि उनके उनके पास अभी कुछ पता नहीं, कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए। और 12th वाले तो अलग ही सीन है, उनका एग्ज़ाम इतना लंबा खींचा है कि बच्चों के पास एंट्रेंस ट्रेन करने के लिए कुछ भी टाइम नहीं मिला और दे आर एब्सोल्युटली इन अ ब्रोक स्टेट, यू नो। सो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आप 10th में ही रादर, अगर आप ये वीडियो 8th में सुन रहे हो या कोई पेरेंट है जो ये वीडियो 8th स्टैंडर्ड में सुन रहा है, तो प्लीज़ आप इसके बारे में सीरियस रहना है। और बाकी की जो चीज़ें हैं ना, जो कुछ ज़्यादा इंटरनल चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी, जो हम चैनल से बात करेंगे, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी और हम बात करेंगे। लेकिन बट what is happening, this video was for those people who keep on watching YouTube expecting that they will cross, but they will simply have to take a break. And you know, I am not saying that there are no exceptions, but in 99% of cases there might be one or two exceptions जिसने क्लियर कर लिया। लेकिन YouTube से आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सीख सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट है या संगीत है या म्यूज़िक है। तो आपको ऑनलाइन आप सीख सकते हो शायद कुछ चीज़ें, और यहाँ पे आर्ट के लिए तो कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज आप देखोगे कि जो एनिमेशन इंडस्ट्री है या कोई भी ग्राफिक इंडस्ट्री है, कोई वहाँ पे जाके ड्राइंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे से लोग ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं और वो अब्रॉड की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो थोड़ी ना वहाँ पे जाके कुछ कर रहे हैं, यहीं से सब चल रहा है। तो इसमें ये क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है ऑनलाइन टीचिंग का। ओके, हाँ ये आता है कि सामने जब भी ह्यूमन हमारे टीचर होता है तो एक अलग सा फीलिंग होता है, वो बस फीलिंग वाली ही बात है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप टीचर के साथ एडजस्ट हो जाते हो ऑनलाइन में भी, और फिर फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम हमारे मम्मी डैडी से ऑनलाइन बात करते हैं तो हम उतना ही लगाव से बात करते हैं जितना कि हम हमें है ऑलरेडी। तो वो टाइम के साथ आने लगता है कंफर्ट जोन। बाकी टेक्निकली तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है ऑनलाइन टीचिंग में, जैसे म्यूज़िक में आता है। म्यूज़िक में क्या होता है कि थोड़ा सा आपका टाइम डिफरेंस आ जाता है जब तक आवाज़ आपके पास पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज आपको कहाँ पे गाना गाना है, आपको तो ड्राइंग करना है, आपका टाइम अपने पास है, आप अपने पेपर और अपने पेंसिल से ही ये चीज़ें कर रहे हो। टीचर आपके अदर साइड पे है, और रादर टीचर ने कभी आपके काम पे हाथ भी नहीं लगाना होता है। मैंने अपने 20 साल के टीचिंग के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे कभी नहीं किया है, कभी भी नहीं कि मैंने बच्चे के काम को हाथ लगाया, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं उसके काम पे कुछ करती हूँ, अगर मैं उसने जो काम किया है उसके ऊपर कुछ काम कर रही हूँ। और ये क्यों करते हैं जनरली, इसके भी रीजंस है, क्योंकि पेरेंट्स को दिखाना होता है कि अब बच्चा आपका कर रहा है और अच्छा बना रहा है। लेकिन और तभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। लेकिन अगर टीचर ने आपके काम के ऊपर काम किया है तो वो काम आपका नहीं है, और फिर आप कैसे जज करेंगे कि आपका लेवल कैसे बढ़ रहा है, आपका इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है या नहीं। क्योंकि लॉन्ग स्पैन में जब भी आपको काम देखना होता है आपका, और आपको अपने आप का आकलन करना होता है, या यू हैव टू मेजर योर ग्रोथ, हाउ यू आर डूइंग, तो ये सारा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जब भी ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था कि जिनके पास अभी वक्त है, और जो ये सोच रहे हैं कि हम YouTube से सीखेंगे, तो ऐसे मत कीजिए। आप हमारे पास आ सकते हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। पहली बात तो हाँ, आपको ऐसे लगता है कि आपको कोई और अच्छा ट्रेन कर रहा है,
वो आपके ऊपर है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ हमारे पास ही आना है, लेकिन आप ये जानना है कि आपको अच्छे टीचर की जरूरत पड़ेगी जो आपको करेक्ट तरीके से गाइड करेगा, और उसे उस सिचुएशन की अंदाज होना चाहिए उस सारे सिचुएशंस का, और वो बहुत स्पेसिफिक होता है। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ जेजे के बारे में बात कर रही हूँ। मैं कलकत्ता का कॉलेज या केरला का जो कॉलेज है उस बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। आई एम वेरी स्पेसिफिक, आई एम टॉकिंग अबाउट जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। हाँ, ये जो ट्रेनिंग है ना, ये आपको उन कॉलेजेस के लिए भी हेल्प करता है, बिकॉज जेजे बहुत ही एकेडमिक सा कॉलेज है, और यहाँ का जो ट्रेनिंग है, जो एंट्रेंस पैटर्न है, ये इतना इतना क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट और कॉम्प्राइज्ड है कि अगर आपको ये आता है ना, तो आप डेफिनेटली बाकी कॉलेजेस के एंट्रेंस को भी आराम से क्लियर करोगे। ओके, बिकॉज आपको मेमोरी ड्राइंग आता है, वहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी का अंडरस्टैंडिंग है, आप लाइव ह्यूमन बॉडी कर सकते हो, आप लाइव स्टिल लाइफ कर सकते हो। आपको जब तक इतना ऑब्जेक्ट्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप बड़े बड़े स्टिल लाइफ रख के आप अटेम्प्ट करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का तरीका भी वहाँ पे क्लैश होता है। बिकॉज आपको स्केचिंग आनी चाहिए, आपको चीजें आनी चाहिए बनाने, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके स्टिल लाइफ। आप डायरेक्ट पूरा स्टिल लाइफ अप्रोच करते हो, आपको ऑब्जेक्ट का ही स्टडी नहीं है, आप साथ में पूरा सब कंपोजिशन का स्टडी, कलर स्कीम का स्टडी, और ये सारा सब कैसे करोगे। तो थोड़ा सा इसीलिए जेजे का जो एंट्रेंस है ना, मैं जेजे के एंट्रेंस के पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करूंगी कि ये किस तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी सही तरीका है जजिंग का। हालांकि इसके भी लिमिटेशंस हैं, और हर एक एंट्रेंस पैटर्न के लिमिटेशंस है। अगर आप एनआईडी के बारे में देखोगे, डिज़ाइनिंग के जो कॉलेजेस है, या आप और कोई, तो वहाँ पे अपने अपने लिमिटेशंस है। ऐसे नहीं होता है कि एक पूरा सा एक पैकेज पूरा सही ही है, आपको प्लस एंड माइनस हर जगह पे मिलेंगे। लेकिन फिर भी जो इसकी प्लस है, जो इसकी प्लस वाली बाजू है, उसको मैं डिस्कस करूंगी। और दैट्स इट। ये वीडियो मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया है जिन्होंने अभी 10th क्रॉस किया है, और जो सोच रहे हैं कि जो बीएफए के लिए अपियर करेंगे, और जो स्पेसिफिकली जेजे के लिए कंसिडर करेंगे। और सिर्फ स्पेसिफिकली जेजे नहीं, आप बाकी भी बीएफ, क्योंकि हमारे बच्चे हमने कैलकाटा में भी क्लियर किए है, शांति निकेतन में, और केरला में शायद नहीं किया, लेकिन शांति निकेतन में हमने बच्चों को भेजा है। हमारे पास जो ट्रेन हुआ है वो। तो ये इस तरह से पूरा आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक बॉटम लाइन कि आप सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड नहीं रहिए, आपको टीचर लगेगा। ओके, और हमारा न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहा है, और आप चाहते हो कि आप हमको एक बार जांचो या हमें पर को, तो हमारा फ्री सेशंस है, 2 सेशंस हम फ्री देते हैं। आपने बस व्हाट्सअप करना है, और हम आपको लिंक भेजेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप हमारा सेशन अटेंड करके देख सकते हो कि आपको क्या लगता है। इट्स नॉट ओनली जेजे, वी ऑल्सो ट्रेन फॉर नाटा, वी ऑल्सो ट्रेन फॉर एनआईडी, बट यहाँ पे द पॉइंट इज दैट you have to start training yourselves in time, because you are going to compete for that small amount of seats, and for that you have to be really ahead of such a big crowd which is trying to compete with you all. Okay, so that's it. This was what I wanted to discuss. इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप आउटसाइडर है और आप सच्ची सीरियस है मुंबई में आके सीखना या जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में सीखना, तो आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट एलिमेंट्री को नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अभी एंड नेक्स्ट थिंग इज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। बहुत कम मैंने एनालिटिक्स देखा चैनल का, तो वहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि 70%, मोर देन 70% जो क्राउड है वो चैनल को विदाउट सब्सक्राइब किए हुए देख रहा है। मतलब जो व्यूवर्स है, व्यूइंग तो अच्छा है चैनल का हमारे, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है ना, तो subscribers are watching, they are not subscribing, people are watching, or students are, or maybe whoever is watching us, please subscribe, because that keeps us motivated to tell you all the fact and to discuss few things very openly. I have never done, it's the biggest of मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं कुछ चीज़ें छुपा के बात नहीं कर सकती, मैं जो है वो सच बताऊंगी आपको। और
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो और आपने हम लास्ट टाइम जिसने जिसने मुझे फ़ोन किया था, प्लीज़ आप एक कमेंट छोड़िए कि कैसे आपने सिर्फ हमारा चैनल देख के आपने एंट्रेंस क्लियर किया है, ओके, और आपको कैसे सपोर्ट मिला है। और अगर आप ऐसे सब्सक्राइबर हो जो आपने सब्सक्राइब नहीं, क्योंकि 70% ऑफ पीपल आर वॉचिंग विदाउट सब्सक्राइबिंग, तो आप ऐसे सब्सक्राइबर हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें भी आफ्टर मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स वो है जिनके ऑलरेडी हज़ार हज़ार सब्सक्राइबर्स है, तो उसके बारे में बाद में बात करूंगी मैं। लेकिन कभी कभी यूट्यूब पे जब भी आप कंटेंट दे रहे हो, स्पेशली जब भी आप बहुत ही सच्चा और क्लियर कंटेंट दे रहे हो, तभी आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एटलीस्ट सब्सक्राइबर्स रहे, और आपकी जो बात है वो उसमें वज़न बढ़ने के लिए आपके सब्सक्रिप्शंस का ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो और दूसरी ये बात कि हमारा जो सेकंड चैनल है ना, वो सिर्फ मैंने ऐसे रियलाइज़ किया कि एकेडमिक और जो चीज़ें जाननी ज़रूरी है, जो सिर्फ स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट जनरली एक सोशली जो चीज़ें आर्ट के बारे में अवेयरनेस आना ज़रूरी है, या पेरेंट्स में अवेयरनेस, बिकॉज बच्चे आज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि स्ट्रगल की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। इंजीनियरिंग के बच्चों को आप इंजीनियरिंग करना है बोलो, आपके मम्मी डैडी मना नहीं करेंगे, लेकिन कौन सी गारंटी है कि आपको जॉब मिल जाता है, आपको अच्छा ही जॉब मिलता है, आपको अच्छी पे स्किल मिलती है? वहाँ पे तो कोई गारंटी के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। लेकिन यहाँ पे तो बहुत लोगों को ऐसी पड़ी होती है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एक ही फील्ड ऐसी मुझे दिखती है जो आपको कभी ऐसे अगर आप इसके साथ ट्रू हो, आप सच्ची में इसको बहुत लगाव से कर रहे हो और मेहनत से कर रहे हो, तो आज तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आज तो इसका कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन इतना है कि डिज़ाइनिंग तो आप लोगों को पीछे छोड़ रहा है। इंजीनियरिंग को तो ऑलरेडी उसने पीछे छोड़ दिया है। डिज़ाइनिंग में बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं जितने कि इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, और डॉक्टरी को भी छोड़ेगा ही तो ज़रूर। जल्दी ही ऐसे होगा कि आप रियलाइज, बिकॉज अभी टाइम बदल रहा है, और वी नीड क्रिएटिविटी, वी नीड क्रिएटिव पीपल, सो थिंग्स आर चेंजिंग, एंड थिंग्स आर इन favor ऑफ आर्ट एंड आर्ट स्टूडेंट्स एंड people who want to get into art and learn art. Okay, so that's it. I know that I have said so many things which are maybe not even relevant to the video, but जिस्ट एक था कि आप हमारे पास टाइम पे आइए। अगर आप टाइम पे आते हैं तो हम दे पाएंगे, अगर आप थोड़ा लेट करते हो तो फिर ना, ऐसे नहीं कि नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि हम क्रैश, सच्ची बात है, देखो क्रैश कोर्स होते हैं 15 दिन में ट्रेन करेंगे 10 दिन, ये बात झूठ है, ये ऐसे नहीं होता है। ओके, आप फंस जाते हो ऐसी चीज़।